ملتان کی فضائی آلودگی سے چھٹکارا نہ مل سکا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس بدستور خراب، آلودہ شہروں میں ملتان کا دوسرا نمبر۔ شہر کا مجموعی AQI 385 پوائنٹس، جبکہ سب سے زیادہ میٹروپولیٹن کارپوریشن آفس کے پاس 465 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ خبر ہے ملتان سے، ملتان کو فضائی آلودگی سے چھٹکارا نہ مل سکا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس بدستور خراب، آلودہ ترین شہروں میں ملتان کا دوسرا نمبر۔ شہر کا مجموعی AQI 385 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ سب سے زیادہ میٹروپولیٹن کارپوریشن آفس کے پاس 465 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے سہیرا طارق سے۔ ملتان شہر میں اگر ہم فضائی آلودگی کی بات کریں تو ایک بار پھر ملتان شہر جو ہے وہ اسموک کی لپیٹ میں آ چکا ہے، اور جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ بھی خطرناک حد تک آلودہ ہو چکا ہے۔ ملتان شہر فضائی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں آج پھر سے دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو 385 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملتان کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ مجموعی AQI سے بھی زیادہ جو ہے پوائنٹس پر موجود ہے، جیسا کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن آفس جو کہ ملتان میں ممتاز آباد کا علاقہ کہلایا جاتا ہے، وہاں پر AQI 465 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر بات کی جائے تو کینٹ ایریا میں جو AQI ہے وہ 336 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ خانے وال روڈ پر جو AQI ہے وہ 281 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جو ملتان شہر میں ٹریفک اور فیکٹریوں کا دھواں ہے، یہ سب عناصر مل کر اسموک اور فضائی آلودگی جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں، اور فضائی آلودگی کے باعث شہریوں کو مختلف قسم کی بیماریوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس میں اسکن الرجی ہے، گلے کی بیماریاں ہیں، زکام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹ الرجی سے جو شہری متاثر ہوئے ہیں ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ ٹریفک کا دباؤ جن علاقوں میں زیادہ ہے وہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس بھی معمول سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ماہرین صحت کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ شہریوں کو فضائی آلودگی والے جہاں پر علاقے زیادہ ہیں، جہاں پر فضائی آلودگی زیادہ ہے، ان کو ماسک استعمال کرنا چاہیے، گھروں سے باہر نکلتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے، اور غیر ضروری سفر سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملتان شہر میں خشک سردی کا راج برقرار رہے گا۔ رات کے وقت جو ہے وہ شدید دھند ہوتی ہے، آج بھی صبح 11 بجے کے قریب شدید دھند تھی، اور جیسے ہی دھند کے بادل چھٹتے ہیں تو ملتان شہر کو اسموک لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ ابھی بھی اسموک کی وجہ سے ہر طرف جو ہے وہ دھواں دکھائی دے رہا ہے، اور جو شہری باہر ہیں جو آؤٹ ڈور کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہ اسموک جو ہے وہ کافی خطرناک ہے سانس کے ذریعے، کیونکہ یہ ایسے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو کہ سانس کے ذریعے انسانی جسم کے اندر جاتے ہیں اور صحت کو بری طرح سے متاثر کرتے ہیں۔ موجودہ ٹیمپریچر کی بات کی جائے تو 12 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ کم سے کم آج درجہ حرارت جو ہے وہ 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 روز تک ملتان کا موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ بارش کا فی الحال 24 گھنٹوں کے دوران کوئی امکان ظاہر نہیں کیا گیا۔ جب تک بارش نہیں ہوتی ہے تو ملتان سے اسموک اور فضائی آلودگی کا خاتمہ نہیں ہو سکے گا۔ جی بہت شکریہ سہیرا تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں بہاولپور میں کڑاکے کی سردی، جانوروں اور پرندوں کو محفوظ رکھنے کے لیے چڑیا گھر میں خصوصی انتظامات کیے گئے۔ پرندوں کے پنجروں کی جالیاں ڈھانپ دی، شیروں کے لیے بھی ٹھنڈے فرش پر گھاس بچھا دی۔ جانوروں اور پرندوں کی خوراک اور دیگر انتظامات کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں، تفصیلات جانیں گے محمود ظہیر سے۔ جی، بہاولپور کا قدیمی شیر باغ یعنی کہ چڑیا گھر اس وقت بھی توجہ کا مرکز ہے مقامی سیاحوں اور نیشنل سیاحوں کے۔ ابھی بھی لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد وہ جانور، وہ پرندے جو بڑے قیمتی ہیں، ان کی صحت کیسی ہے، ان کی خوراک کیسی ہے، اس کا خیال رکھا جا رہا ہے چڑیا گھر کے انتظامیہ کی جانب سے۔ انہیں سردیوں کی خوراک دی جا رہی ہے، ان کو ڈھانپ دیا گیا ہے تاکہ شدید سردی نہ لگے۔ کیا کیا انتظامات کیے گئے انسپیکٹر اسامہ صاحب سے جانتے ہیں، جی ذرا بتائیے۔ ہمارے پاس بہاولپور جو شیر باغ، ایک تاریخی شیر باغ چڑیا گھر ہے، جس کے 3 سیکشنز ہیں، جس میں ہمارے پاس ڈیر سیکشن، برڈ سیکشن اور لائن سیکشن ہے۔ تو تمام سپیشیز کے حساب سے ہم نے جیسے سردیاں آ گئی ہیں اس کے لیے ہم انتظامات کیے ہیں۔ جیسے ڈیر سیکشن کے اندر ہم نے جو پرالی وغیرہ ہوتی ہے وہ ڈال دی ہے، اس کے علاوہ جو برڈ سیکشن ہے اس میں ہم نے جو شاپر وغیرہ اور تلپارے وغیرہ کا انتظام کیا ہے، اور اس کے علاوہ خاص طور پر ہم نے ان کی ڈائٹ میں بھی تبدیلی کی ہے۔ جیسا کہ سردی آتی ہے تو انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے، تو اینیملز کی جو فیڈنگ ہے اس کا جو ہیبٹ ہے وہ طریقہ کار اس کو بھی چینج کیا جاتا ہے، گڑ دیا جاتا ہے، ڈفرینٹ قسم کے وٹامنز وغیرہ، مونگ پھلیاں، چنے، اور یہ تمام جو چیزیں ہیں اس کو ہم نے اس کے ساتھ جو ہے اس کا مینجمنٹ۔ جی بہت شکریہ، ابھی آپ سن رہے تھے، اور واقعی میں اتنی شدید سردی ہے کہ اس میں جانوروں اور پرندوں کا خیال رکھنا بنتا بھی ہے، ان کے لیے اسپیشل اہتمام کرنا بنتا بھی ہے، جس کے بارے میں آپ کو بریف۔ بہت شکریہ محمود ظہیر آپ کا۔
अड्डा ज़खीरा और गिरदोनवाब में गुज़श्ता कई रोज से जारी शदीद धुंध और सर्दी की लहर के बाद आज बिल आखिर सूरज निकल आया। कई रोज से मुंजमद निज़ाम जिंदगी धूप निकलने के साथ ही बहाल होना शुरू हो गया। मज़ीद तफसीलात के लिए ज्वाइन किया है मोहम्मद नवाज प्रिंस ने। मोहम्मद नवाज बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अड्डा ज़खीरा में मौजूद हूँ। अड्डा ज़खीरा और गिरदोनवाब में जो सर्दी में मुसलसल इजाफा हो रहा था, जिसकी वजह से जहाँ के दुकानदार और कारोबारी हजरात भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। आज अल्लाह ताला की खास रहमत की वजह से सूरज जो अपनी आबोताब के साथ जहाँ पे चमक रहा है, जिसकी वजह से जहाँ के अड्डा ज़खीरा के शहरों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। इस वक्त जो अड्डा ज़खीरा के शहरी मेरे साथ मौजूद है, मजीद इस वक्त इनसे जानते हैं। जी भी, आज सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है, सर्दी का जोर कम हो गया, इस वजह से आपका क्या कहना है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, आज धूप निकली है। कई दिन की सर्दी के बाद जो कारोबार मुतासर हो रहे थे सर्दी की वजह से, इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएंगे और हम धूप में खड़े हैं। ये अल्लाह ताला का बड़ा खास करम है कि आज कई दिनों की सर्दी के बाद सूरज निकला। जी, शहरी का कहना था कि कई रोज के बाद आज जो सूरज निकला है, हम कारोबार की वजह से भी बहुत परेशान थे। इस वाले से और भी शहरी मेरे साथ मौजूद है, इस वाले से इनसे जानते हैं। जी भाई, आपका क्या कहना है इस वाले से? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी दिनों के बाद आज सूरज अपने पूरे आबोताब के साथ आंख दिखा रहा है, तो हम खूब इंजॉय कर रहे हैं, धूप को खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो सर्दी की वजह से हमारा कारोबार भी काफ़ी हद तक मुतासर हो रहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप चारों तरफ देख सकते हैं, हमारे इर्द-ओ-नवाब में देख सकते हैं, लोगों का क्राउड भी नज़र आ रहा है और कारोबार भी अल्हम्दुलिल्लाह चल पड़ा है। तो हमें बहुत ये सर्दी की वजह से काफ़ी बीमारियां भी जन्म ले रही थी और ख़ास तौर पर फसलें और जानवर भी मुतासर हो रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है कि सूरज ने आज अपनी आंख दिखाई है और हम खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी, जैसा कि शहरी की बात आपने सुनी, इनका यही कहना है कि जो सर्दी की वजह से जो कारोबार भी ठप था, उसके अलावा जो जानवर और फसलें भी तबाह हो रही थी, जिसकी वजह से सूरज आज निकलने की वजह से हर चीज़ में हसास बसास हो गया। और वे जो काफ़ी लोग जो घरों से बाहर भी निकले हैं, जो सर्दी की वजह से बिल्कुल मसूर होकर रह गए थे, इसकी वजह से अल्लाह का खास शुक्र है कि आज सूरज निकला हुआ है। अड्डा ज़खीरा में हम बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार कर रहे हैं इस वक्त। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नवाज अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े आपको बताएं, अहमदपुर लम्हा में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला रुक ना सका। 7 से 9 घंटे बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग होना मामूल बन गया है। बिजली की तवील लोड शेडिंग से कारोबारी मराकज में सन्नाटा, परेशान दुकानदार का हुकूमत वक्त से लोड शेडिंग खत्म करने की अपील। तफसीलात से आगे करेंगे आबिद हुसैन भट्ट। बिल्कुल, अहमदपुर लम्हा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला रुक ना सका और 7 से 9 घंटे बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कारोबारी जिंदगी ठप होकर रह गया है। मेरे साथ इस वक्त कारोबारी हजरात मौजूद हैं। मजीद लोड शेडिंग के हवाले सुनते जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे जी आप? मेरी दुकान है, मैं ये गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि बिजली का जो दरानी है ना, वो बहुत ज्यादा है। दिन छोटे हैं, सर्दियों की वजह से कारोबार सारे ठप हो गए। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि बिजली का शेड्यूल पेश किया या 1 से 2 घंटे का हमें पता तो कि इस टाइम बिजली जानी है, हम उसका मुतबादल ज़राए कर सके। हमारे कारोबार बिल्कुल ठप हो के रह गए। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि जो 8 से 10 घंटे बिजली बंद कर रहे हैं ना, इसका दरानिया कम किया जाए। आज ही जैसा कि आपने दुकानदार हजरात की बात सुनी, उनका वापडा हकाम और हुकूमत वक्त से अपील करते हुए कहना है कि लोड शेडिंग का दौरानिया या कम किया जाए या इसका खात्मा किया जाए, जिसकी वजह से ये हमारे कारोबारी जिंदगी मुतासर हो रहे हैं। और उन्होंने मजीद कहा है कि यह शेड्यूल जारी किया जाए ताकि हम मुतबादल इंतजाम कर सकें। जी बहुत शुक्रिया आबिद हुसैन भट्ट आपका। मुल्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस इलेक्ट्रिक हीटर और गीजर की डिमांड भी बढ़ गई। तलब बढ़ने से घंटाघर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में इलेक्ट्रिक हीटर और गीजर की कीमतें भी दुगनी हो गई। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही इलेक्ट्रिक हीटर और गीजर की मांग भी बढ़ गई। शहरियों ने इलेक्ट्रिक हीटर और गीजर खरीदने के लिए घंटा घर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स का रुख कर लिया। इलेक्ट्रिक हीटर 3000 से 10,000 जबकि इलेक्ट्रिक गीजर 15,000 से 50,000 रुपए तक फरोख्त हो रहे हैं। दुकानदार का कहना था कि इनकी कोशिश है कि मुनासिब कीमतों पर सामान फरोख्त करें, लेकिन शहरी लागत से भी सस्ती चीजें चाहते हैं। तो सर्दी के पेश नजर अल्हम्दुलिल्लाह सीधा गीजर और हीटर की डिमांड बढ़ चुकी है और गीजर और हीटर की डिमांड बढ़ चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुनासिब प्राइस पर हम लोग कस्टमर को सेल आउट कर रहे हैं। शहरियों का कहना था कि एक हफ्ते पहले जो हीटर 3,000 रुपए का था वो आज 5 से 6,000 रुपए का मिल रहा है। एक वीक पहले जब आए थे तो सर्दी की शिद्दत में इतना इजाफा नहीं था, तो तब प्राइस ये थी कि तकरीबन 3,000 की थी ऑलमोस्ट। आज जब हम आए तो वो प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। जैसे आपको पता है रात के टाइम पर टेम्परेचर ऑलमोस्ट 2 डिग्री तक जा चुका है, तो ये है कि गीजर और हीटर के बिना तो बिल्कुल भी आपको पता गुजारा नहीं है। शहरियों ने मजीद कहा कि सर्दियों में गर्म पानी और हीटर के बगैर गुजारा नहीं। बच्चों के बीमार
बेकार होने के डर से गीजर और हीटर खरीदने आए हैं। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। बहावलपुर में शदीद सर्दी की लहर जारी। ठिठुरते शहरी गर्म मलबूसात की तलाश में सेकंड हैंड कपड़ों की मार्केट्स का रुख करने लगे। मार्केट में शहरियों का रश, दुकानदारों का कारोबार चमक उठा। खरीदारों के शिकवे, कहते हैं दुकानदारों ने मौका का फायदा उठाकर रेट डबल कर दिए। बिल्कुल जी, बहावलपुर में खून जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है और ऐसे में शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो गर्म कपड़ों की तलाश में लंडा बाजार पहुंची और इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में शहरी जो है लंडा बाजार मौजूद है। मैं चाहूंगा मेरा कैमरामैन अकरम शाहीन थोड़ा सा आपको दिखाएगा कि इस वक्त मार्केट में गहमा गहमी है। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मर्दों खवातीन जो उन्होंने लंडा बाजार का रुख किया है और मिशन सिर्फ यही है कि सर्दी से कैसे बचा जाए और गर्म कपड़े जो हैं उनकी खरीदारी की जाए। यहाँ पर जोक दर जोक शहरी जो है वो आ रहे हैं और इससे पहले चूंकि बहावलपुर में जब सर्दी नहीं थी तो जो दुकानदार थे वही परेशान थे कि ग्राहक कब आएंगे और कारोबार जो है हमारा कब जो है आगे बढ़ेगा। क्या कहते हैं जी? बिल्कुल जी, ठंड है, ठंड में एंजॉय कर रहे हैं और ये शॉपिंग जारी है। गर्म कपड़े वगैरह ले रहे हैं। हाँ, और मेरे ख्याल में अब कुछ दिन ऐसे ही मौसम रहेगा। हाँ, बस साथ साथ ये तो चलना है ना, चलता रहेगा। बिल्कुल। आप ये बताएं कि आखिर इतनी क्या ये कुछ दिन पहले आए थे तो ये बिल्कुल खाली थी जगह, कोई भी नहीं था, तो अचानक इतना रश हो? हाँ, तो ये धुंध की वजह से जब जैसे सर्दी बढ़ी है तो ग्राहकों का रश भी हो गया है और बस। ठीक है। हाँ, आमदरफ्त जारी है। तो क्या कहते हैं रेट वगैरह बाकी सारा? हाँ, रेट ठीक है, मुनासिब है। सर्दी की वजह से थोड़े रेट बढ़ गए हैं। ठीक है। हाँ, पहले थोड़ा मुनासिब था रेट, अभी थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। रेट बढ़ने का जो है वो यहाँ पर शिकवा किया जा रहा है शहरियों की तरफ से, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में शहरी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और यही शहरियों की तरफ से कहा जा रहा है कि सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है जिसके बायस मार्केट पहुंचे हैं और गर्म कपड़े जो उनकी खरीदारी का सिलसिला जो है वो बढ़ गया है। इस्लामिया फाउंडेशन अहमदपुर शर्किया के चेयरमैन हाजी आमिर शहजाद का एहसन फलाही इकदाम। शहर में जारी शदीद सर्दी की लहर के पेश नजर रिक्शा ड्राइवर्स में दस्ताने तकसीम किए। इस मौके पर हाजी आमिर शहजाद का कहना था, शदीद सर्दी में सड़कों पर काम करने वाले मजदूर तबके का ख्याल रखना हम सब की इखलाकी जिम्मेदारी है। इस्लामिया फाउंडेशन अहमदपुर शर्किया के चेयरमैन हाजी आमिर शहजाद का एहसन फलाही इकदाम। शहर में जारी शदीद सर्दी की लहर के पेश नजर रिक्शा ड्राइवर्स में दस्ताने तकसीम किए। इस मौका पर हाजी आमिर शहजाद का कहना था, शदीद सर्दी में सड़कों पर काम करने वाले मजदूर तबके का ख्याल रखना हम सब की इखलाकी जिम्मेदारी है। शदीद सर्दी की लहर में खुश्क मेवाजात की डिमांड बढ़ गई। मुल्तान में शहरियों ने पिस्ता, बादाम और काजू खरीदने के लिए ड्राई फ्रूट वाली दुकानों का रुख कर लिया। मुल्तान में सर्दी की शिद्दत बढ़ने पर खुश्क मेवाजात की डिमांड में इजाफा। शहरियों ने पिस्ता, बादाम और काजू खरीदने के लिए ड्राई फ्रूट शॉप्स का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है कि सर्दियों में पिस्ता और बादाम खाने से जिस्म गर्म रहता है और तवानाई भी मिलती है। बस रेट तो तेज हुए, सर्दी जैसे बढ़ती है तो इसलिए पीछे से रेट भी बड़े हुए आ जाते हैं हमारे पास, बहुत तेज रेट हो जाते हैं। तो बादाम इस टाइम 3600 रुपये किलो हम दे रहे हैं। अमेरिकन पिस्ता 4000 रुपये किलो है। काजू भी 3600 रुपये किलो है। उसमें भी वैरायटी है, फिर कम भी है, तेज भी है, हर चीज़ में। अखरोट तकरीबन 3200 रुपये किलो है, अच्छे वाला, अच्छे क्वालिटी का। चनगोजा 3 वैरायटी में पड़ा है, 8 भी है, 64 भी है और 12000 भी है। दुकानदार के मुताबिक सर्दी बढ़ने के साथ ही खुश्क मेवाजात भी महंगे होने लगे हैं। सीजन के आगाज पर रेट कुछ और था मगर आजकल रेट ज्यादा हैं। काजू और पिस्ता 4000, बादाम 3600 रुपए फी किलो हैं। सीजन के शुरू में चरगोजा 7000 रुपए फी किलो था मगर आज 12000 रुपए फी किलो है। हमने खरीदा जी काजू है, ये अखरोट की गरी है और ये पिस्ता है, थोड़ा सा कुछ हालात के मुताबिक ही है। सर्दी भी इतनी है और ये फायदेमंद भी है। फायदेमंद तो है, फायदेमंद है, लेकिन जेब इजाजत दे तो ज्यादा बेहतर होते हैं। बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे। शहरियों का कहना था कि खुश्क मेवाजात महंगे होकर आवाम की पहुंच से दूर जा चुके हैं, इसलिए थोड़े थोड़े खरीद कर गुजारा कर रहे हैं। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। मुल्तान में यकबस्ता सर्दियों में भाप उड़ाती चाय का कप महज एक मशरूब नहीं, एक एहसास बन गया। हाथों में थामे ही इस गर्मी की जिस्म नहीं बल्कि दिल तक उतर जाती है। इसके हर गुण के साथ सर्द हवा की काट मध्यम पड़ने लगती है। कम होते दर्जा हरारत ने शहरियों को गर्म कपड़ों के साथ गर्म चाय का भी आदी बना दिया। सर्द मौसम का लुत्फ उठाने के लिए शहरी बड़ी तादाद में चाय के होटलों का रुख कर रहे हैं। मुल्तान में जैसे ही सर्दी ने जोर पकड़ा वैसे ही चाय के होटल्स पर रश बढ़ गया। यूं लगा जैसे सर्द मौसम में गर्म चाय ने न सिर्फ जिस्मों को हरारत दी हो बल्कि शहरियों के दिलों को भी एक दूसरे के करीब कर दिया हो। गली मोहल्लों से लेकर बड़े होटल्स तक हर जानिब गरम गरम चाय की खुशबू फैली हुई है।
ये सर्दी का मौसम है, इसमें चाय का वो मज़ा बहुत अच्छा आता है। बाली चाय ले की बड़ी चाय वो मशहूर है और बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं यहाँ चाय पीने के लिए। इनकी वो कश्मीरी चाय है, वो सादा चाय है, बहुत अच्छी चाय है और ये बहुत इनका जायका है। शाम को, सुबह, दोपहर, शाम इनके पास बहुत ज़्यादा वो रश लगा होता है, तो इसलिए हम आए हैं इनके पास चाय पीने। भाप उड़ाती प्यालियों के दरमियान हंसी मजाक, यादें और रोजमर्रा के मसाइल सब घुल मिल गए हैं। शहरियों का कहना है कि सर्दी में चाय ना हो तो दिन अधूरा लगता है। चाय ना सिर्फ जिस्म को गर्म रखती है बल्कि महफिल का लुत्फ भी बढ़ा देती है। चाय का कप और दोस्तों का साथ हो तो मौसम का मजा दोबाला हो जाता है। मौसम के हिसाब से तो चाय ड्यूटी के साथ साथ चाय वार्म अप रखती है हमें, तो बाकी ये मौसम का मेवा भी है, इसके साथ चाय अच्छी है। इसके सुबह हो या शाम, चाय के होटलों पर शहरी देर तक चाय के साथ सर्द मौसम से लुत्फानंदोज होते नजर आते हैं। कैमरामैन एटी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। आगे बढ़े, आपको बताएं मकामी सब्जियों की नई फसल काश्त होने के बाद रहीम यार खान की मार्केट में पहुंचना शुरू। तलब और रसद के दरमियान तवाज़ुन पैदा हो गया। सप्लाई में बेहतरी के बायस छुट्टी के रोज सब्जियों की कीमतों में नुमाया कमी रिकॉर्ड। कीमतें गिरने से महंगाई के बोझ तले दबे शहरियों ने सुख का सांस लिया। मजीद तफसीलात जानेंगे आमिर भट्टी से। जी बिल्कुल, रहीम यार खान में मौसम तब्दील होते और मकामी सब्जियां काश्त होने के बाद मार्केट में पहुंचने से सब्जियों की डिमांड और सप्लाई में तवाज़ुन हो, जिससे सब्जियों की कीमतों में छुट्टी के रोज मजीद जो है वो कमी देखने में आई। सब्जियों की कीमतों में रिकॉर्ड कमी देखने में आई है। सब्जियों के आज के मौजूदा रेट्स को देखा जाए तो एक हफ्ते को कंपेयर करके मटर के फी किलो रेट में 30 रुपए की कमी आई है। मटर जो कि पहले 100 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा था, अब 30 रुपए फी किलो कमी के बाद 70 रुपए फी किलो सस्ता फरोख्त होने लगे। इसके साथ साथ टमाटर के फी किलो रेट में 10 रुपए की कमी आई है। टमाटर 50 से 40 रुपए फी किलो अब सस्ता फरोख्त होने लगा है। प्याज और गोभी के फी किलो रेट में भी 10 रुपए की कमी आई है। अब दोनों जो है वो 50 से 40 रुपए फी किलो सस्ते फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह से शिमला मिर्च के फी किलो रेट में भी 50 रुपए की कमी आई। शिमला मिर्च 150 से अब 100 रुपए फी किलो सस्ती फरोख्त होने लगी है। सब्जी मिर्च के फी किलो रेट में 50 रुपए की कमी आई है और अब ये 150 से 100 रुपए फी किलो सस्ती फरोख्त होने लगी है। खीरे के फी किलो रेट में 30 रुपए की कमी आई है। खीरा 80 से अब 50 रुपए फी किलो सस्ता फरोख्त होने लगा है। बंद गोभी के फी किलो रेट में भी इसी तरह से कमी आई है और अब ये 80 से 50 रुपए फी किलो सस्ता फरोख्त होने लगा है। और इसके साथ साथ आलू के फी किलो रेट में 20 रुपए की कमी आई। आलू 50 से 30 रुपए फी किलो सस्ता फरोख्त होने लगा है। सब्जियों की कीमतों में वाज़ेह तौर पे कमी आ चुकी है, जिसके बाद छुट्टी के रोज शहरी जो है जो कि पहले महंगाई से परेशान थे, अब सस्ती सब्जियां खरीद के जो है वो जहां पे खुश दिखाई दे रहे। तो इसके साथ साथ मजीद उनका ये मुतालबा भी है कि गवर्नमेंट को जिस तरह से सब्जियां सस्ती हुई, इस तरह से दीगर अशिया खुरोनोश की कीमतों में भी वाज़ेह तौर पर कमी लाई जाए, ताकि महंगाई से परेशान शहरी जो है वो तमाम अशिया खुरोनोश सस्ते दामों खरीद सके। जी शुक्रिया आमिर भट्टी अपडेट करने के लिए। मुल्तान में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इंतजामी और सियासी बुनियादों पर तैयारियां जारी हैं। डिवीजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून साद खुर्शीद कांजू कहते हैं मुल्तान कॉरपोरेशन को 3 टाउन में तकसीम किया गया। जिले इंतजामिया 2 से 3 रोज में टाउन्स के नक्शे जारी करते हैं। तफसीलात से आगे करेंगे जुनैद अनवर। आज बिल्कुल बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां मुल्तान के नक्शों पर जो है वो काम जारी है। इस वक्त डिवीजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून साद खुर्शीद कांजू हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। साथ साथ बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इस वक्त क्या जो है वो लेटेस्ट सूरत हाल है और मुल्तान के कितने टाउन बनने जा रहे हैं, आया क्या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होगा या क्या होगा? जी, मुल्तान जो पहले कॉरपोरेशन थी उसको 3 टाउन्स में बदला जा रहा है और 3 टाउन जो है उन पे काम हो रहा है। इंतजामिया उस पर काम कर रही है। मेरे ख्याल में 2-4 दिन के अंदर फाइनल हो जाएगा कि उन टाउन्स की क्या नाम है। नाम तो है लेकिन वो खुद अनाउंस करना ज़्यादा बेहतर है और उनकी हदूद क्या होंगी इस पर काम हो रहा है। जैसे ही टाउन्स का काम मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद हर पूरे पंजाब की सतह पर जो तहसील के बुनियाद पर सिस्टम बनाया जा रहा है, तो फिर जब तहसील और टाउन मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर यूनियन काउंसिल्स पे काम शुरू हो जाएगा, तो उस पर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो जैसे ही वो मुकम्मल हो जाएंगे सारे ये काम, उसके बाद इंशाअल्लाह इंतखाबात का ऐलान होगा और फिर तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो अपनी मेहनत और अपने बलबूते पे इंशाअल्लाह उसमें हिस्सा लेंगे। लगता है कब तक ये इंतखाबी जो शेड्यूल है, बल्दियाती इंतखाबी शेड्यूल, वो आ जाएगा? मेरी जाती राय है, कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं, मेरी जाती राय है कि लोधरा शहर में सड़कों के मसाइल हल ना हो सके। मॉडल सिटी से हवेली नसीर खान को मिलाने वाली 7 किलोमीटर तवील सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार। खस्ता सड़क के बायस अहले इलाका शदीद मुश्किलात का शिकार है।
गोधरा में मॉडल सिटी से हवेली नसीर खां तक सड़क टूट फूट का शिकार। ये सड़क 25 बस्तियों को शहर से मिलाती है। इन बस्तियों के मकीनों का शिकवा है कि गुज़िश्ता 30 साल से ये सड़क टूटी हुई है। अब हालात ये हैं कि मरीज तो दरकिनार, तंदुरुस्त अफराद का भी सड़क पर सफर करना इंतहाई तकलीफ देह है। हल्के से मुंतखब मेंबरान असम्बली भी अपने घरों को जाने के लिए यही सड़क इस्तेमाल करते हैं। इसके बावजूद उन्होंने सड़क की तामीर और मरम्मत के लिए आज तक कोई इकदाम नहीं किए। ये सड़क 30 साल हो गए तकरीबन, इस सड़क का कोई जो है ना पुरसे हाल नहीं है। हमने बड़ी दफा कोशिश की है, हमारे मुकामी जो MNA है, MP हैं, उनके पास भी हम गए हैं और इंतजामिया के पास भी हम गए हैं, कोई बंदा सुनने वाला नहीं है। जी, हमारी यही गुजारिश है, जो भी हमारे MP MNA हैं, ये रोड बहुत टूटा हुआ है। इस जहाँ से ये लोग जो है ना वो नहीं गुजर सकते बेचारे। बच्चे स्कूल जाते हैं, गिर जाते हैं, लोग जाते हैं जो बीमार होते हैं, वो अस्पताल उनको पहुंचने से पहले यहाँ पे उनका जो है ना काम तमाम हो जाता है। हमारा कारोबार जो है ना वो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है इस रोड की वजह से। हवेली नसीर खां रोड मेंबरान असम्बली की रिहाइश गाँव के बाइस तहसील लोधरा में इंतहाई अहमियत और शोहरत रखती है। अहले इलाका ने मेंबरान असम्बली और डिप्टी कमिश्नर लोधरा से सड़क की असर नौ तामीर का मुतालबा किया है। कैमरामैन सजाद भट्टी के साथ राना आसिफ हनीफ, रोही, लोधरा। आपको बताएं, मुल्तान वासा की गफलत या मुबैना नाअहली, गिलगश कॉलोनी में लीक वाटर सप्लाई लाइन को 4 रोज बाद भी मरम्मत न किया जा सका। पानी जमा होने की वजह से शहरियों के लिए गुजरना मुश्किल हो गया। इलाका वकीलों का फासा इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। कहते हैं 4 दिन से शिकायत दर्ज करवा रहे हैं मगर वासा का अमला मसला हल नहीं कर रहा। मुल्तान वासा की मुबैना नाअहली शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। गुलगश कॉलोनी में पीने वाले पानी की पाइपलाइन लीक होने से पानी गलियों में जमा, शहरियों का गुजरना मुश्किल हो गया। इलाका मकीन कहते हैं 4 दिन हो चुके, वासा इंतजामिया पाइपलाइन मुरम्मत नहीं कर पाई। शिकायत करते हैं तो वासा वाले सर्वे करके चले जाते हैं, मसला हल नहीं कर रहे। ये जी काफी दिनों से ये सिलसिला चल रहा है। वासा को जाके कंप्लेन लिखवाते हैं, बार बार लिखवानी पड़ती है हमें कंप्लेन, तो कंप्लेन के आ जाते हैं, देख के तो फिर चले जाते हैं। दूसरी दफा फिर जाना पड़ता है हमें कि यार वो अभी ठीक नहीं हुआ, आके ठीक करके जाओ। आते हैं तो देख के चले जाते हैं। ताजरों का कहना है कि सड़क पर पानी जमा होने की वजह से कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। ग्राहक भी पानी की वजह से रुकने को तैयार नहीं। कोई कारोबार नहीं हो रहा, पानी की वजह से कोई ग्राहक पे नहीं आता। और सफाई का भी इंतजाम ये है कि मुहर्रम पे सफाई होती है और मुहर्रम पे ही दोबारा होती है। जी 1 साल के बाद ये सफाई होती है और सफाई करने वाले भी कोई नहीं आते। कस्टमर आते नहीं है, कस्टमर काफ़ी बिहेव करते हैं, कह रहे हैं ये तुम्हारा सैलून है क्या, कचरा खाना है, जितना आगे कचरा पड़ा होता है। 3-4 दफा 2 गाड़ियां आई, वो भी देख के चली गई, हाँ हम अभी आते हैं, ये करके चले जाते हैं। वासा इंतजामिया फौरी तौर पर वाटर सप्लाई लाइन की मुरम्मत करे ताकि इलाका मकीनों को घरों में साफ पानी दस्तयाब हो सके और उन्हें आमदोरफ्त में दरपेश मुश्किलात भी खत्म हो। कैमरामैन इरफान असलम के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। खानपुर बार एसोसिएशन के इलेक्शन में वकला इत्तेहाद ग्रुप की शानदार कामयाबी। राना वकास सदर और बाबर वकास जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। मजीद तफसीलात जानेंगे आमिर सोहेल से। जी बिल्कुल, खानपुर में बार एसोसिएशन के इलेक्शन में वकला इत्तेहाद ग्रुप ने कामयाबी हासिल की। सदर के लिए राना वकास आजम और जनरल सेक्रेटरी बाबर वकास जो हैं मुंतखब हुए हैं। उनके रिहाइशगाह पर उनको मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। जनरल सेक्रेटरी बाबर वकास हमारे साथ हैं। सर बताएंगे, सबसे पहले मुबारक हो आपको, और आपको वकला ने कामयाब किया, क्या कहेंगे? खानपुर बार एसोसिएशन के ताउन से मैं जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुआ हूँ और मेरी कोशिश होगी कि वकला इत्तेहाद जो इस टाइम पैनल रऊफ साहब की क़यादत में हम जीते हैं, तो वकला साहबान की खिदमत में कोई कमी ना लाई जाए। वकला साहबान के मामलात जो भी उनके हैं, उनके हल के लिए मैं भरपूर अपना किरदार अदा कर सकूँ और उनकी खिदमत कर सकूँ। बाबर वकास एक बहुत अच्छा कैंडिडेट साबित हुआ है और ये इंशाअल्लाह वकला की इज्जत, डिग्निटी, मकाम, वकार का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे और वकला को साथ लेके चलेंगे और वकला के बार के जितने भी मसाइल हैं वो इनको बड़े खुश असलूबी से हल करेंगे। और हमारी भी यही दुआ है कि ये अच्छे तरीके से खुश असलूबी से इस बार को जो है ना रन करें ताकि आने वाले वक्त में जो एक मिसाल है वो कायम करें। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, वकला की भारी जो है अक्सरियत यहाँ पर पहुंची है। मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। जनरल सेक्रेटरी बाबर वकास को मुबारक दी गई। बहुत शुक्रिया आमिर सुहेल आपका। राजनपुर प्रेस क्लब में 10 साल बाद जमहूरी तरीके से होने वाले इलेक्शन के वोटिंग का मरहला मुकम्मल हो गया। गिनती का अमल जारी है। सदारत के लिए दोनों उम्मीदवार जीतने के लिए पुरअज़्म हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे अफजल फरीदी से। राजनपुर प्रेस क्लब में हम इस वक्त मौजूद हैं और सालाना इंतखाबात की अमल का पोलिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। काउंटिंग जारी है। सदारत के दोनों उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं।
इलियास रजा साहब और यहाँ से इम्तियाज हुसैन मिशोरी साहब, जो कि सदारत के उम्मीदवार हैं। दोनों से ही बात करना चाहेंगे। बड़ा गहमा गहमी है, ठंडे मौसम को गर्म किया हुआ है, किस तरह से पुरज़म है, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारी जो इलेक्शन कैंपेन है तकरीबन कोई 15 दिन से जारी है और माशाल्लाह बहुत ज्यादा इस टाइम आज जो हमारा इलेक्शन का दिन है बड़ा जोश खरोश देखने में आ रहा है। और मैं अपने पैनल के लिए इंशाल्लाह कामयाबी की दुआ कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मेरा पैनल कामयाब होगा। मेरे 2 उम्मीदवार है जिसमें फना एक चेयरमैन एक मेंबर मजलिस आमा और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राना मजीद साहब, ये बिना मुकाबला पहले कामयाब हो चुके हैं। बाकी इंशाल्लाह मेरा तमाम पैनल जीतेगा। इस समय तमाम अंजुमन ताजरान की तरफ से, शहर की तरफ से, मजहबी जमातों के सरबराहान की तरफ से और मुख्तलिफ मुल्करा की तरफ से और शहरों की तरफ से बड़ी यहाँ पे हमें सपोर्ट है, हमारे इलेक्शन में हो रही है और सब यहाँ पर जमा है, हमारी खुशी में खुश हो रहे हैं। इंशाल्लाह हम सहाफी अपने इस प्रेस क्लब के लिए जो अज़म लेकर आए हैं इंशाल्लाह कामयाब होंगे। इंशाल्लाह थोड़ी देर तक रिजल्ट गिनती शुरू हो चुकी है, थोड़ी तक रिजल्ट आ जाएगा। इंशाल्लाह हमें अपनी उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे। दूसरे सदारत के उम्मीदवार इम्तियाज हुसैन मिशोरी साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जो राजनपुर का जो 15 दिन से इलेक्शन की गहमा गहमी थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट अभी शुरू होने वाला है और गिनती होगी है। वोटिंग का जो अमल है वो भी इख्तिताम पजीर हो चुका है और उम्मीद है अल्लाह ताला हम दोनों में से एक को जरूर कामयाब करेगा। और ये बड़ा अच्छा लगा कि बड़े 10 साल बाद राजनपुर के इलेक्शन हुए और सारे दोस्त बड़ी जोशो खरोश से इसमें हिस्सा लिया। जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कुंदिया में 3 सालाना 3 रोज़ा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। 3 रोज़ में 550 मरीजों ने फ्री आई कैंप से इस्तेफादा किया। फ्री आई कैंप टोगर वेलफेयर और जामिया मोहम्मदिया सैफिया के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद हुआ। फ्री आई कैंप में कुंदिया के अलावा मियांवाली और नवा के मरीजों ने इस्तेफादा किया। कैंप में आई सर्जन ने 62 मरीजों की आंखों के ऑपरेशन किए। मरीजों का मुफ्त चेकअप, अद्वियात और मुफ्त रिहाइश फराहम की गई।